Okay, we can start. I think let people join a bit. So, okay. So yesterday we had a request on business ethics that we should have, and I think easiest is to understand this from a startup point of view. कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो भी है सोच रहे हैं उनको किस तरह का एथिक्स मेंटेन करना चाहिए शुरू से किस तरह का नहीं करना चाहिए लेट्स से दे माइट बी not taking things seriously in their college or school maybe but probably they need to be a bit on the serious direction now and start thinking and I think we can also say कि किस किस तरह के बिजनेस एथिक्स काम नहीं करेंगे स्टार्टअप के लिए ठीक है सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद दिस सो अतुल सर कैन वी हैव सम कमेंट फ्रॉम यू Sure, Vishal. One thing what I have learned from experience, and all of us have learned from many of those scams and very big and successful people now in the jail, is that doesn't matter how well you do financially or how intelligent and smart you are as a person are or as a company are, at the end of it, if you don't follow ethics, then everything you lose. So you lose your reputation, you lose your money, and most likely you'll go in jail. So business ethics is not like optional or good to have. It's like a starting point. Everything else is secondary. So your financial acumen, your operational excellence, and your marketing savvy, how good you're at marketing and sales and all those things, they're all good to have. But the fundamental is your integrity, and business integrity is a personal thing, but same thing, business ethics is also, I would say, part of integrity. That are you honest to and another personal thing I say is we all need to follow the rules. So that's what most people follow as the corporate governance and laws. But it's not just rule. We have to follow the dharma. And dharma, I'm saying not in the religion, but dharma means doing right. So there's the right is right and wrong is wrong. There is no boundary on that. If you do something immoral, it's immoral. If you lie in your balance sheet, if you lie in a marketing pitch, many big companies have done that. Enron is a very famous example, and recently also you have seen many other companies which have done. Recently, that big bank which went almost bankrupt. Was the a very famous Vikram Talwar thing. So business ethics is number one, and then comes everything else, and that's all I would like to say. Okay. Shyama sir, you want to say something? Are you here? Hello. Can you hear me? Yes. You can hear me? Yes, please. Okay. Yeah, this time it is showing like a WhatsApp call. It's okay, fine. Yeah, so Atul rightly told all these things. So first of all, this question is coming that what does ethics mean, right? So ethics not something different than your own life. The business ethics are not something very different than your own life. So you have to be truthful, you have to be honest and high integrity, I should say, in the business. Like whatever you are promising, you must deliver, because एक business में तो कई सारे stakeholder होता है ना. So your customers at stake, your employees, your board, banks. So you are making a commitment to each and every stakeholders. And one has to remain very truthful and highly integrated towards that. So to me, the business ethics is one of that intention. That you are having a good intention, first of all. Like your Vijay Mallya, Kingfisher, he had a very nice dream that he will give the luxury to the common people of India. मैं ही क्यों उसरे पैसे घूमो, बाकी लोगों को घूमने दो. That was his dream.
But his Correct. problem was his ultimate intention, or for example, Nirav Modi. So it was all of a bad intention. So if people start with that intention in the mind, in the business, they're definitely going to suffer in the coming years, because the corporate governance and all, they can't get away with for a long time. Mhm. So this, of course, there are certain companies who maneuvers their business. Reliance is one example. But what they do, they adhere to this integrity, and they just maneuver through the laws changes and all those things. So they are still in the same perimeter, you know. Okay. And now they are so conscious at this moment that any kind of billing or this thing, you know, pakka kacha bill and all, they have all got away with. They don't entertain at all. So it has become a robust company now. Mhm. So जब business startup चालू करते हैं, that times you may have to compromise many things. Means you cannot be a monk to run a business. But at the same time, you have to keep in mind that what is my real intention? Is my real intention today, you know, I was talking to a few investors, how they evaluate a business founder or the people they are funding. वो जाके देखते हैं कि वो बैलेंस शीट वगैरह समझता नहीं हो. What he sees that जैसे फंड मिलता है, is that owner buying a BMW car or not? अगर उसको उनको दिख जाता है कि वो फंड मिला और नेक्स्ट डे उन्होंने कोई बढ़िया गाड़ी खरीद लिया या गोइंग फॉर वेकेशन, then they start becoming alert that this guy is having some other intention, you know. So agar business mein, if somebody is really serious about it, this is a very vital part today to me, Okay. because you are committing it to the so many stakeholders. So review each of your promises, whatever you are making. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वादा किया है. वादा किया बोलने से थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, प्रॉमिस बोलने से थोड़ा कैसे लग दिखता है, नहीं? तो वादा करना पड़ेगा आपको कि हमने कस्टमर को मैंने ये वादा किया है और हमने इसको ये बोला है, तो मेरे को ये डिलीवर करना है. हमने एम्प्लॉयज को जो साथ में रखा है उनको मैंने ये वादा किया है, तो उनको ये देना पड़ेगा मेरे को. आज टुडे एनवायरमेंटल नॉर्म्स और व्हाटएवर हमने पूरा टू द वर्ल्ड, मैंने वादा किया कि भाई आई विल मेक इट ए यू नो पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री. तो उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा जहां तक हो सकता है आज मेरे को थोड़ा सा आई एम इन डिफिकल्टी, आई एम नॉट हैविंग सो मच मनी, बट आई एम टुवर्ड्स दैट. सिमिलरली टू द स्टेक होल्डर्स, जो भी अपने बैलेंस शीट में आपका दिखा रहे हो, यू कैनॉट make a very false balance sheet. This is the very every industry does it. Like the burning example is Wipro. So inflating the profits and all those things and taking more monies from the bank. These are all will come under, you know, which is against ethics. But again, business has to run. One has to maneuver the business in a difficult way to understand the situation and all those things. But as long as the intention is correct and you are truthful, you are with the highly integrated person as a business founder, so that will be the part of ethics, I should say. Mm-hmm. Okay. So I think you made a good comment that cannot be a fully monk to run a business. So now the question is tricky. कितने percent dishonesty allowed है या you know tweaking allowed है, because ये कच्चा पक्का भी तो बहुत लोग करते हैं. नहीं, इंटेंशन ठीक रखना चाहिए. मतलब योर एब्सोल्यूट इंटेंशन दैट जो भी बिजनेस से हमने पैसा बनाएंगे इसको, I will make it from the business and I will not spend it in a different way for my own consumption. जैसे custodian management, you see, today whenever you are running a business, you are taking the money from others, banks and all those things. Don't think that it is your own business.
this is a big mistake many business founders do, because I have worked with business founders from the beginning of my career. So I have seen some of them, I've seen good people, and then again, I have some different other experiences. So there, the intention has to be in that direction, that you are, whatever money you are making, that you are making without ditching others, or so many, abiding by the norms, whatever a country has, or that particular industry has, you are following with all those things. And yeah, बाकी कितना परसेंटेज होगा ऐसे I think आज निकाल के रहेंगे. Yes, अतुल sir, बताइए. I have a slightly non-conventional but very strong view on that. कि there is not 1% ethics or 99% ethics or 99.99. It is 100% or 0%. It's a binary. If you break one law, you are as likely to be called a corrupt person as you break 5 laws. Or if you अपने ऑफिस में 10 रुपया चोरी किया या $10 billion का घोटाला किया, चोरी है, आपने रूल तोड़ा, that's it. So ethics cannot be in a gray zone कि नहीं वो ethical है और ऑफिस में आता है, लेकिन कभी कभार ऑफिस का क्या कहते हैं, प्रिंटर ऑफिस से लेके पेपर लेके चला जाता है, या ऑफिस से अपना कोई इंपॉर्टेंट स्टेशनरी लेके चला जाता है, लेकिन अदरवाइज कोई बड़ा घोटाला नहीं किया है. ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट कि आपने चोरी नहीं किया बिजनेस में, मतलब कि आपने नहीं किया. पता है, पीपल नो कि अगर विशाल को के साथ में विशाल ने मुझे कुछ प्रॉमिस किया तो वो पूरा करेगा, एटलीस्ट कोशिश करेगा. नहीं कर पाया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, कोई एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर, दैट्स डिफरेंट. बट विशाल्स वर्ड इज द आई से, मैं कभी-कभी बिजनेस में बहुत सारे पार्टनर्स को बोलता हूँ कि माय वर्ड इज माय बॉन्ड. आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि नहीं किया वो बात की बात है, बट वर्ड एज इन व्हाट्सएप पे मैंने बोल दिया, आपको ये प्रॉमिस किया तो ये मैं करूंगा, and I will give my life आपको पूरा करने के लिए जितना कर नहीं कर पाएगा because of any reason, that's people understand that. But किसी को मैंने बोल दिया कि मैं ये आपके लिए करूंगा, कमिटमेंट किया, तो वो इस I would value it more than a contract. क्योंकि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सिलिकॉन वैली में या इवन दुनिया भर में ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं या वीसीज होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर, उनके बीच में आपस का एक बार ट्रस्ट टूट गया ना तो सब टूट जाएगा. आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड टर्म शीट, एट द एंड ऑफ इट व्हाट हैपेंस कि कोर्ट में जाओगे, lawyers will make money but both parties will lose, both parties might go bankrupt. तो अल्टीमेटली ये आपका रेपुटेशन बिल्ड करना कि विशाल ने ये कमिट किया है तो विशाल अपना जान प्राण तन मन धन सब दे देगा, लेकिन प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करेगा. अब विशाल की तबीयत खराब हो गई, अचानक विशाल का बिजनेस ने बोला था कि मैं आपके लिए ये बिल्डिंग बना दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगी. दैट अदर्स अंडरस्टैंड. आप उनको जब बताओगे कि देखिए हमने ये प्रॉमिस किया था, ये कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दैट ऑन टाइम और as per requirement because of this situation, so that the client and business part will understand. But आपका intent and action towards commitment towards the जो promise है वो दिखना चाहिए, and वो बहुत important है मेरे लिए business ethics. Okay, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख करते हैं. तो हो क्या जाता है कि 365 डेज है, इतने सारे ईयर्स होते हैं लाइफ में, ये वो हर दिन हर चीज लाइक पाप का घड़ा भरना या बोलते हैं जैसे. तो आई डोंट नो कि कितने सारे लोग एक्चुअली लाइक कैन बी लाइक रियली 100% practical and like can maintain integrity fully always, because ये कच्चा पक्का बिल ही हम देखते हैं बहुत बार. कर लेता है बहुत लोग कि चलो टैक्स बचा लेते हैं, कस्टमर का भी टैक्स बच गया, अपना भी फाइलिंग बच गया, क्या जरूरत है उनको ये करने का वो करने का. तो ये सब चीज तो आई थिंक वी सी इट वेरी ऑफ्टन. maybe we can take some comment from Abhishek
जनता. व्हाट डू यू थिंक अभिषेक, ये कच्चा पक्का बिल, टैक्स का ऊपर नीचे मैनिपुलेशन, व्हाट डू यू थिंक? सॉरी. नहीं नहीं, देखिए दो चीज हम बोलना चाहेंगे. एक तो है ट्रस्ट वाला, तो मतलब ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर करता है. जैसे हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं. हम अपना जो पहले एलईडी लाइट देते थे, तो हम तो उस दुकान में नहीं सेल करते थे, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता था. तो एक मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब था, तो मेरे से डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोला कि वो बोला कि दुकानदार सब हमको वो गाली देता है, आप तो वहां पे सुनने नहीं जाते हैं. तो उस चीज का हमको एनालाइज हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है. तो हम उसको वादा किए कि मतलब अगला जब भी तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट जाएगा, ये तुमको चीज जो जो अभी सुनने को मिल रहा है दोबारा रिपीट नहीं होगा. उसके बाद वो रिपीट नहीं हुआ, तो मतलब एक होता है कि आपके साथ जो भी एम्प्लॉय है, यहाँ तक कि एक प्यून भी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या काम कर रहा है, तो उसके लिए रेस्पेक्ट वैल्यू वो बहुत बड़ा चीज होता है. जब तक आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, तब तक मतलब वो आपके लिए दिल से काम नहीं कर सकता है. और कच्चा पक्का बिल का है, हम तो खैर हम अपना ओपनली बोलते हैं, दोनों करते हैं. क्योंकि मेरा जो बिजनेस है, इसमें कच्चा काम ही ज्यादा होता है. क्योंकि जो भी है मेरा लोकल से सेल होता है, तो मतलब गांव साइड का जो भी दुकान होता है, वहाँ पे मतलब बिल उल का उतना सिस्टम रहता है नहीं. तो है ईमानदारी से चीजें, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप साल का 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो 1 करोड़ का आपको जीएसटी देना एक कंपल्सरी है. थोड़ा आप भी खाइए, थोड़ा गवर्नमेंट को भी खाने दीजिए, मिल बांट कर खाइए. सही है. ओके. नीरज, यू हैव एनी कमेंट ये मिल बांट के खाने वाले पे? Ankit, are you here? Yes. Yes. Okay, let me Yes. brief you a bit. We are talking about ethics. So, talking ki business mein 100% honesty, is it a practical solution? I mean, can it really happen? Ki person can be 100% or the business can be 100% honest in all aspects? या कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे मैनिपुलेशन करना ही पड़ जाता है because of practical circumstances? What do you think? सर पहले आप ये बताइए, ग्रुप में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर कोई सेल्स टैक्स वाला है कि नहीं है? उसके बाद मैं आपको ये हम लोग एथिक्स पे बात कर रहे हैं. हाँ, वो एथिक्स की मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लूंगा. ये कोई है नहीं just ना ऐसे. नहीं कोई नहीं है. हाँ चलिए ठीक है. मैं फर्स्ट कम फर्स्ट एथिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. It doesn't necessary if you should be honest while doing the business. It always matters what others, your competitors, if they are honest or not. क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स अगर ये बिजनेस एथिक्स को मैनिपुलेट करते हैं या फिर वो अपने तरफ से कच्चा पक्का करते हैं, सो अनडाउटेडली आप जितने भी ऑनेस्ट बंदे हो, आप जितना भी अच्छा कर ले, टैक्स दे, गवर्नमेंट को सब कुछ करे, यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस सून. क्योंकि आप जितना रेट में आप अपना सामान बेचेंगे उससे सस्ता आपके कॉम्पिटिटर्स जो कि कच्चा पक्का करे वो बेचेंगे. राइट. दिस इज अ कॉमन सेंस. मेरे मार्केट में बात किया जाए, ग्रे मार्केट जो रहता है इंडिया इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय द ग्रे मार्केट. यहाँ पे ब्लैक मार्केट और व्हाइट मार्केट में भी 20% है, उससे 80% इज ग्रे मार्केट. अगर आप ग्रे मार्केट की बात की जाए, सो यहाँ पे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं कोई भी फील्ड के, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, बहुत कम फील्ड होंगे जहाँ पे सिर्फ पक्के का काम होता है. एंड अगर आप ये एमएसएमई, स्मॉल स्केल और माइक्रो की बात की जाए जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो वहां पे तो इट्स मतलब बहुत दूर की बात है कि वहां पे जो है लोग प्रैक्टिस करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे और पक्के की बात करेंगे. वहां पे सिर्फ कच्चा ही चलता है. और ये इट्स अ कॉमन सेंस. आप विलेजेस में जाएंगे, वहां पे कोई आपको बिल काट के नहीं देगा जब आप कुछ सामान लेंगे, क्योंकि उनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, उनके खुद के करेंट अकाउंट नहीं है, सेविंग्स अकाउंट भी नहीं है. अभी मोदी जी ने सेविंग्स अकाउंट किए हैं, द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बट हमेशा से
आपको आपका डिपेंड करता है मार्केट की कॉम्पिटिटर्स पे कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं है। आप जितने भी ऑनेस्ट हो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इन 10 years इनटू द बिजनेस, इफ यू आर वेरी गुड इन द मार्केटिंग, सब कुछ ठीक है, आप ऑनेस्ट हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स अगर एथिक्स में थोड़े से आपसे नीचे हैं, you will be out of the business soon. So it always depends on others rather than depending on you. This simple एक मैं आपको बता दिया मैंने. Basically circumstance. Yes अतुल सर, बताइए. नहीं, ये एथिक्स जो है ना सर्कमस्टांशियल नहीं होता है, सिचुएशन नहीं होता है। एथिक्स में 1 और 0 वाला बाइनरी होता है। आपने शॉर्टकट मारा, आप बन गए, आप बिलियनर बन गए, आपका सबसे बड़े उस इंडस्ट्री में हो गए। बट जो हमने पहले भी बात किया था टाटा और रिलायंस, तो टाटा का ब्रांड आज इतना बड़ा ब्रांड है, या दुनिया की बहुत सारी प्रेस्टीजियस कंपनी है, गूगल या एप्पल या जो भी, तो कुछ चीजें बिजनेस की होती हैं कि किसी एक ने कंपटीशन को ये करने के लिए किसी ने प्रेशर यूज किया या अपने कनेक्शंस यूज किए, बट वो सारी चीज आपके जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो उस कंट्री के लॉ को आपने एक बार तोड़ा, तो इनकम टैक्स और एक्साइज और कस्टम और इतने सारे जो है ना, तो वो आपके पीछे आज न कल आएंगे। आप एग्जाम्पल लीजिए नीरव मोदी टाइप के लोगों को, या और भी बहुत सारे केस हुआ था, राडिया केस जब हुआ था कुछ साल पहले इंडिया में, तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का नाम आया, तो उनके खिलाफ एक केस बना। आपने छोटा सा इनकम टैक्स घोटाला किया या बहुत बड़ा लालू यादव की तरह बहुत बड़ा चारा घोटाला किया, बट घोटाला है। और आपने कल को आपको जब कोर्ट में जाओगे, अदालत में जाओगे, तो उस कंट्री का सिस्टम माइट टेक टाइम। जैसे इंडिया में कोर्ट सिस्टम्स, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो चाहे सिविल कोर्ट हो, टाइम लगता है, इट्स लॉन्ग प्रोसेस। बट वो लॉन्ग प्रोसेस आप देखोगे, आज लालू यादव जी को भी चारा घोटाले के बाद 20-30 साल बाद उनको फाइनली जेल हुआ, उनकी सारी लाइफ लॉन्ग की कमाई एक एक करके उनके घर वर बिक गई। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, जैसे कि अभी विजय माल्या का एग्जाम्पल किसने लिया। आज विजय माल्या एक जमाने में बहुत बड़े रॉक स्टार था। रिमेम्बर मैं एक IIM अहमदाबाद के वीडियो, वो एकदम सुपरस्टार हीरो की तरह से आ रहे थे विजय माल्या, और कल्चरल फेस्टिवल में उनको मतलब कि बहुत बड़े स्पॉन्सर थे, तो ऑब्वियसली किंगफिशर, लिव गुड लाइफ बहुत बड़ा आइकॉन था। बट आज उनको भारत आने के लिए दिक्कत हो रहा है, उनको भागना पड़ा, लंदन जाके छुपना पड़ा, और अभी उनको विदिन 6 months उनको आने की बात हो रही। बट एक ये भी बात है, उनको इंडिया आने के लिए साथ में उनको जितने बड़े बड़े इंडिया के जो पॉलिटिकल लोग हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सभी लोगों का पाप उगल देंगे, क्योंकि उनको इम्यूनिटी तभी मिलेगी कि आपको इंडिया में हम आने तो दे रहे हैं, आपको जेल नहीं भेजेंगे। या व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट का जो ED है, मतलब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है या कस्टम है, सारे लोग मिलकर बैठकर इनसे विजय माल्या से सबके बारे में बताएंगे। ये बताइए कि अंबानी ने कहा क्या क्या, ये बताइए वहां पे क्या हो। और जिनके पास बहुत ज्यादा बिजनेस था, तो सब लोग का वो किसी बोला पाप का घड़ा, तो पाप का घड़ा है वो एक साथ बल्क में फूटेगा। कभी कभी टाइम लग जाता है, 20 साल 30 साल 50 साल भी, कभी कभी लोग मर भी जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में गलती जो है पकड़ी जाती है। और नहीं भी पकड़ी जाती है ना, तो आपके परिवार वाले, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, वो आपको इज्जत से नहीं देखते हैं। यू माइट बी बहुत बिलियनर, यू माइट बी वेरी रिच गाय, तो बहुत लोग आपको सामने में, आपके सामने प्रणाम करेंगे, इज्जत देंगे, पर पीछे में वही लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, वही आपके बारे में बात करेंगे कि ये बहुत चोरी का पैसा है। नोबडी विल रिस्पेक्ट यू, और रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत लोगों के लिए। तो रिस्पेक्ट नहीं रहेगा आपने थोड़ा सा भी अनएथिकल किया। जैसे कि अगेन अंबानी का एग्जाम्पल लेता हूँ, मुकेश अंबानी रिचेस्ट गाय इन इंडिया, बहुत रेस्पेक्टेबल है, शायद नहीं, बहुत लोग उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आज रतन टाटा को जो इज्जत है, वो आज मुकेश अंबानी की इज्जत न थी ना होंगे, या जो भी, या नारायण मूर्ति को ले लीजिए, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर थे, तो ही इज नॉट द रिचेस्ट गाय, 3 बिलियन के आसपास, 2-3 बिलियन होगा, बट जिस तरह से एथिकली उन्होंने राइट डे वन से इन्फोसिस ने या बहुत सारी कंपनी, टाटा ग्रुप ने कंपनी की एथिक्स पे बहुत ध्यान दिया, तो वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। और बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनीज है, मल्टीनेशनल से, स्पेशली यूरोप की और भी ज्यादा लॉज स्ट्रिक्ट है, तो उनके लॉज होते हैं कि आप क्या यूरोप का वो जो नया लॉ पास हुआ, तो
उनके लॉज इतने स्ट्रिक्ट है ना कि आपका थोड़ा सा भी उन पे डाउट होगा. जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था जीई में, तो जीई किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने के पहले दे हैव टू डू ऑल द लीगल एंड ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता था कि उनको कुछ पैसा तो नहीं खिलाना पड़ेगा, और करना है तो फिर दे कांट डू इट, बिकॉज कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उनको अपने कंट्री, अपने कंपनी का भी, अपने कंट्री का भी, जहां भी ऑपरेट करते हैं, उनको उसके लॉज को और उनके जो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा. तो शॉर्ट टर्म में चोरी पकड़ी जाए, बच जाएगी, छोटे मोटा आप कर सकते हो, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 30 साल, 50 साल, 100 साल में, only the great companies, the great companies will only be those who have strong ethical business practices. Yes, Mr. Karthike. Yeah, then Ankit can speak. Yes, Karthike, please. Yeah, so Mr. Ankit, it was really very good that you were being so precautious, but just a small reminder for everyone कि ये session record हो रहा है and YouTube पर भी जाएगा, तो yeah, all the best. Secondly, I actually had a question for I think specifically Mr. Goswami, because I think you have worked in manufacturing sector as well, and maybe with these very big companies as well. So are you guys very sure that ऐसी बड़ी companies में भी they follow business ethics, and not just with the government but then internally as well? जैसे Mr. Vishal he quoted कि वो कच्चे बिल वाला काम है. Of course कच्चे बिल वाला काम ऐसा नहीं होता होगा बड़ी companies में, but then do these kind of companies also find इधर-उधर के रास्ते to do such things or not? I'm just curious. Yeah, like Karthike, the big manufacturing companies like Reliance bolo या Birla's bolo, they will not do this kacha pakka because they have gone above all those things, because they have already founded themselves in such a strong way, so they will not get into such kind of how to say, they will not entertain any kind of such practices within the organizations. Okay, वो ठीक है, so अभी नहीं करेंगे, फ्यूचर में नहीं करेंगे, पास्ट में किया था कि नहीं? पास्ट में देखिए, जब दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एक्चुअली, कि आप जिस इकोसिस्टम में, जैसे अंकित अभी बोल रहा था कि that you have to see that what ecosystem you are working with. Today an American ecosystem and Indian ecosystem will be different. Chinese ecosystem will be completely different. So in a particular ecosystem, if the local businesses, especially the small businesses, if they have to succeed, they have to work in that ecosystem. So that's why I say that your basic intention has to be good. Your intention is not to that whatever your money you are making, you are just siphoning it out, or you are using for your own usage. Don't do that. And so there is I should not say that I will not encourage also, but as less as you can do with that practices, and keep your businesses floated in a very nice way, that should be the approach, I should say. Like, when GST appeared, when I came to India, these GST rules came in India within. So business bilkul band ho gaya tha. For 7 to 8 months, the business collapsed, honestly, because India runs on a cash economy. India में हमेशा एक parallel economy run करता है, that is a cash economy, and that is even stronger than actual economy sometimes. So that's why sometimes it is not easy to fathom that what is India's true growth is. So उस time मैंने देखा that whoever is the small businesses, they truly suffered, because one thing that the small business owner, he didn't know how to do the bookkeeping properly. Even if he doesn't want to deal in a kacha basis, he doesn't know how to make the bookkeeping. So he was unable to handle his business. And then again, if some people are taking half of the VAT or something like that, so then he becomes uncompetitive if he charges full VAT on that. So with that kind of conditions, a business starts becoming uncompetitive within India for the small and small scale businesses. So there, how shall we address these ethical rules? I think we can debate on that. And whatever one's capacity is, and
whatever way he can do less of it, keeping the intention and the integrity well. इंटीग्रिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीग्रिटी जैसे हमने बात की अभी प्रॉमिस का, ट्रस्ट का, यू नो, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ वादा किया, इसलिए बोलता हूँ कि वादा में थोड़ा दम आता है. वादा किया तो निभाना पड़ेगा. तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा. तो आपने अगर कस्टमर को वादा किया कि भाई आई विल प्रोवाइड यू दिस गुड्स, उसमें आपको एकदम एथिकल होना पड़ेगा आपको, दैट यू विल नॉट. आज ऐसा नहीं है कि इंडिया में जैसे हम लोग फर्स्ट जो मेरे को खराब लगता है, जो मिलावटी है या कोई भी करके कोई भी चीज दे दिया. हमारा एक बिल्डिंग में मोटर उड़ गया था, यू नो, जो वाटर पंप का, तो अभी सब बंद है, तो मैं मोटर ढूंढ रहा था. सो आई वाज ट्राइंग टू सीक हेल्प फ्रॉम अंकित आल्सो. नाउ जहां पर भी गया, यू नो, 2 मोटर उन्होंने दिया, दोनों ने काम नहीं किया, फिर दोबारा वापस किया उनको. So you just imagine in this kind of scenario, why are you giving such a product which is not working? उन्होंने वो starter switch दिया, we have to return twice because it is not working. So why are you providing such kind of products to consumer? So ये एक side है, I should say, because that will make a foundation of your business. इसमें तो कुछ नहीं, one should not compromise even a single bit of it if he has to remain in the business. Second is that आपने जितना भी पैसा बनाया, this money you are not going to use for your own purpose. You know, it's a like जैसे मैंने बात कर रहे थे आपसे कि भाई you are just taking care of this business with that mentality, that you whatever money you are making out of it, you are keeping within the business. तो फ्यूचर में जब भी कोई दिक्कत आएगा, nobody will be able to raise a finger that you have, you know, misappropriated this property in your own personal use. तो उसके बाद you can always explain कि भाई हमने इतना कच्चा किया था, इतना पक्का किया था, चलो इतना कच्चा किया था, उसका फाइन इतना होगा, जो भी होगा भर के आपको निकल के. somehow you have to come to a level. Once your business in a particular scale, उस टाइम तो बिल्कुल एथिकल हो जाना चाहिए. Means one should come out of all these things, and then the growth will take place. It will be a 10 times growth, 20 times growth. I wanted to add something on the trust factor or कच्चा पक्का thing. Basically business जो है, trust से एक word बना है trustee. तो आप जो है, आपके स्टॉक होल्डर्स, आपके एम्प्लॉयर्स और आपके जो कस्टमर्स हैं, बेसिकली उनके, आप उस बिजनेस के ट्रस्टी हो, आप ओनर नहीं हो. ये जो माइंडसेट है ना. एंड द अदर थिंग इज कि एथिक्स स्टार्ट्स एट द टॉप. कल मैं कंपनी का सीईओ हूँ, फाउंडर हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ, तो इट स्टार्ट्स बाय लीडरशिप बाय एग्जांपल. कि पता बहुत सारे भाई आपने का स्टोरी भी सुनी होगी कि उस कंपनी का वो सीईओ है, बिलियनर है, बट वो नॉर्मल छोटी सी मारुति कार या टोयोटा, मतलब कि नॉर्मल कार ड्राइव करके जाता है. तो उसका एक रीजन ये भी नहीं कि वो सीईओ ऊपर से एग्जांपल सेट करना चाहता है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इवन दो मेरे बैंक में $1 बिलियन हो या मैं अरबपति हूँ, करोड़पति हूँ, लेकिन उनके लाइफस्टाइल से, उनके डे टू डे कंडक्ट से दे वांट टू शो कि आई मोर देन माई क्लोथ्स, आई मोर देन माई कार. मुझे मेरे कैरेक्टर पे जज करो, मेरे कैरेक्टर पे जाओ, डोंट गो बाय मेरे टाइटल पे या फैंसी कितनी बड़ी कार चलाता हूँ या कितना बड़ा बंगला है. तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं आप देखते हो, तो दे मेंटेन जनरली अ सिंपल लाइफस्टाइल. एक रीजन ये है कि टॉप लेवल से दे वांट टू शेयर द एग्जांपल उनके ऑफिस में भी, और यूएस में तो बहुत ज्यादा है, बट इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन अभी आ रहा है कि किसी कंपनी में आप जाते हो, या जैसे मैं जी में जब काम करता तो कमर्शियल इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस में था, मैं उसके सीईओ थे पॉल बॉसिडी, उनके फादर लैरी बॉसिडी हनीवेल के सीईओ थे, ऑल दैट. पॉल बॉसिडी के कमरे में anybody could just go and walk out unless कि बहुत बिजी चल रहे, मीटिंग चल रहे हैं, people could walk in walk out. तो वो जो ओपन कल्चर है, या हमको सबको पता है कि शाम को जब आप निकल रहे हैं अपनी कार निकाल रहे पार्किंग लॉट से, तो उसी पार्किंग लॉट में बॉसिडी जी की भी कार है, आपकी भी कार है. तो दिस स्मॉल थिंग्स मैटर क्वाइट अ बिट. और बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग
बहुत बिजी है सीईओ, तो ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं होगा, अपना प्रिंट आउट, उनके पास रूम में प्रिंटर फैक्स सब कुछ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग शेयर्ड ऑफिस से शेयर जो प्रिंटर है वहां से आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा वो प्रिंट आउट निकालने आ रहे हैं, या उसी सेम कैफेटेरिया में वो भी चाय पी रहे हैं, वो भी कॉफी पी रहे हैं, एंड दैट्स टू अ लॉट ऑफ द सोशल नेटवर्किंग हो जाता है बड़े लोगों के साथ। तो ये मैंने देखा है कि लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, कि लीडर ने एग्जाम्पल सेट किया कि बिजनेस एथिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ऑफ द कल्चर बन जाता है, इकोसिस्टम। और चाहे वो ऑफिस का चपरासी हो, चाहे ऑफिस का सीईओ हो, सीएफओ हो, हर लेवल पे ये मैसेज बहुत क्लियर होता है। और किसी ने किया जाने में या अनजाने में पैसे का इधर उधर घोटाला हुआ, किसी के एक्सपेंस रिपोर्ट सबमिट करने में किसी ने गलती कर दिया, तो people get lose their jobs, people get fired, and those examples are very important. business में किसी ने थोड़ा बहुत भी एक्सपेंसिव फाइल करने में, ठीक है टाइम नहीं मिला, गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा भर दिया, मैं गया था इकोनॉमी में और बिजनेस क्लास का फाइल कर दिया एक्सपेंसिव, बट इन मेनी कंपनीज जो एथिक्स के लिए फेमस है, वहां पे पीपल लूज देयर जॉब्स एंड देयर करियर, एंड बाद में बहुत सारे लोग फिर कंपनी उन पे ऐसा एक्शन लेती है कि लिटिगेशन भी कर देती है। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करोगे ना, तो ज्यादा फिर सोचना नहीं पड़ेगा। और जो एक और एग्जांपल जो दिया था सर ने कि इंडिया में स्मॉल बिजनेस में कच्चा पक्का चलता है, हाँ, तो छोटे बिजनेस भी, चूंकि इंडिया में पहले थोड़ा हार्ड था, हर चीज कागज पे नहीं चलता था, बात पे हो जाता था, जबानी चलता था या बिल पे नहीं। बट आप देखोगे डीमोनेटाइजेशन वगैरह जो आ गया, हर चीज डिजिटल होने का फायदा हो गया कि हर चीज का पेपर ट्रेल है। आजकल किसी भी छोटा सा दुकानदार भी पेटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे आप ओला, जो भी आप ऑनलाइन बैंकिंग भी बहुत बड़ा हो गया इंडिया का इकोसिस्टम, तो एवरीथिंग हैज फाइनेंशियल ट्रेल, आपके बैंक से कितना पैसा आया गया। अभी जो बीच में तबलीगी जमात हुआ था जो दिल्ली में, तो उसका भी सारा पैसा पता चला कि कहाँ कहाँ से उनके बैंक में डिपॉजिट अचानक हो रहे थे, कैश डिपॉजिट निकल रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। तो अब थोड़ा आसान हो गया है चोरी पकड़ना। तो अगर कोई छोटा बिजनेस हो उसको भी, और बड़ा बिजनेस तो ऑब्वियसली उनको डे वन से हाई एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एंड अगेन फ्रॉम द टॉप एंड देन इट विल गो टू द बॉटम। Yes, Ankit, yeah, you want to say something, please? I absolutely agree with Mr. Goswami. Ethics जो है वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है। So अभी जैसे मैंने बोला था कि मैंने जो एग्जांपल लिया था वो बेसिकली इंडिया के जो ग्रे सेक्टर्स मार्केट जो है, जिसमें बेसिकली एमएसएमई और जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो भी रोल प्ले करते हैं वही है बेसिकली ग्रे मार्केट, जहाँ पे ये कच्चा पक्का होता है। अभी ना रिलायंस में आपको दिखेगा, ना टाटा में दिखेगा, ना हिंदुस्तान यूनिलीवर, ना कि कोई ऐसी बड़ी कंपनी जहाँ पे ऑडिट्स प्रॉपर होते रहते हैं, और गवर्नमेंट जो है ये सारे कंपनी पे काफी मेजर दे कीप एन आई ऑन इट। और ये सारी कंपनी, जैसे मिस्टर गोस्वामी ने बोला, वो फेज उन्होंने पार कर लिया है कि अब ये टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी, की जीएसटी फाइल नहीं करना, ये वो अब ये सब ऊपर से परे है इन लोग के। मेरा बेसिकली ये मानना है कि सारी छोटी कंपनियां, इवन अगर बात किया जाए धीरू भाई अंबानी जी का, तो उन्होंने भी, आपने शुरू में उनके बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी टैक्स नहीं दिया था, उनको पता ही नहीं था टैक्स होता क्या है, उन्होंने जस्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उस टाइम पे किया, अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं टैक्स होता क्या है, पता ही नहीं है इंडिया में टैक्स होता क्या है, बट वो लोगों में इंटीग्रिटी है। आज धीरू भाई अंबानी जी में इंटीग्रिटी था, आज उनकी सोच बहुत अच्छी थी। जैसे मिस्टर गोस्वामी ने बोला, कस्टमर्स को जो प्रॉमिस किया उन्होंने वो दिया। हाँ, चाहे वो केला सिल्क का कपड़ा था, बोल के केला सिल्क का कपड़ा दिया, आगे फार्मास्यूटिकल्स में जो बोला उन्होंने वो दिया, और भी उन्होंने, उनके बेटे ने इंटीग्रिटी हमेशा से बरकरार रखी, जो प्रॉमिस किया वो दिया। तो अभी ये बात है कि टैक्स के बारे में उन्हें शायद पता नहीं था, उनको उनके ऊपर काफी केसेस हुए, उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा टैक्स नाम का भी कोई चीज होता है, चलो ठीक है। तो उन्होंने कंपनी को उस हिसाब से एडजस्ट किया, और आज रिलायंस कहाँ है वो आप लोग सब जानते हैं। सेम केसेस बिरला का तो शुरू से ही, खैर वो लोग तो रईसी में थे, तो उनका काफी ज्यादा शुरू से ही टैक्स और ये लॉ का लेके काफी स्ट्रिक्टनेस था। तो मुझे कभी पता नहीं कि बिरलास में कभी ऐसा हुआ था, इनिशियली जब बिरला फॉर्म हुआ था तो उन्होंने कुछ कच्चा पक्का का किया हो या नहीं किया हो, अननोनली जैसे रिलायंस में धीरू भाई अंबानी जी ने किया था, ये सबको पता है। उन्होंने कच्चा में ही काम किया था, पक्का क्या होता है वो जैसे मैंने बोला वो जानते नहीं थे, लेकिन उनको इंटीग्रिटी उनकी पूरी साफ थी, नियत साफ थी बिजनेस की, जो आज रिलायंस बड़ा हुआ।
तो कहने का मतलब है कि आप जब पक्के का रास्ता आप चुनते हैं, जरूर आपको बहुत सारी फायदे होते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे अतुल जी ने बोला, आप गलत काम करेंगे तो बिल्कुल आप एमएसएमई के एमएसएमई रहेंगे, आप बड़ा जो है सोच रखने वाली कंपनी नहीं बन सकते, आप बड़ी कंपनी नहीं बन सकते, लार्ज स्केल एंटरप्राइज नहीं बन सकते हो आप। आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, आपके फाइनेंस वीक रहेंगे, आपको आगे मार्केट एक्सपैंड करना है, आप वो नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट बिडिंग्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका टर्नओवर छोटा है। तो ये मैंने काफी सारी चीजें देखी है एमएसएमई की, जो अगर एमएसएमई जो इंटीग्रिटी वाले नहीं है वो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, और जो एमएसएमई इंटीग्रिटी के साथ और अपने जो भी टैक्स है उनको प्रॉपर अगर फुलफिल करते हैं, पे करते हैं, तो वो एमएसएमई लार्ज स्केल एंटरप्राइज बनने में टाइम नहीं लगता। और मैंने काफी कंपनियों को देखा है आगे बढ़ते हुए, जो बहुत उन्होंने सावधानी से सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो किए और ईमानदारी से जितना हो सका, कच्चा मार्केट में भी जितना पक्का का काम हो सका उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जब उन्हें लगा कि हाँ, जैसे मिस्टर गोस्वामी ने बोला, एक लेवल आता है, अगर आप वो लेवल तक पहुंच गए जहां आपको लगा कि अब मुझे कच्चा पक्का से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का में ही करने से जहां मैं 100 रुपए कमाता था शायद मैं वहां पे 80 रुपए कमाऊंगा, लेकिन मैं 80 रुपए मेरा पक्के का होगा, व्हाइट का होगा, मुझे ना इनकम टैक्स से डर है, ना मुझे सेल्स टैक्स से डर है, ना मुझे एक्साइज से डर है। तो अगर मैं उस टाइम पे मैं डिसाइड कर लूं कि नहीं, मैं 100 रुपए कच्चा का नहीं, ब्लैक मनी नहीं, मैं खुश हूँ 80 रुपए, या चलो मैं 60 रुपए व्हाइट मनी में ही खुश हूँ, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इवन गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके साथ पूरे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं और आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपका देखेंगे आपको आगे बढ़ते हुए। और अगर मैं चूज करूंगा कि 100 का 100 अगर मैं ब्लैक मनी कमाते रहूं, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स जो कि उस टाइम पे चूज करेंगे 60 रुपए कमाने का, वो मेरे से डेफिनेटली 20-30 साल में काफी आगे बढ़ जाएंगे। और मैं 100 का 100 ही रुपए कमाते रहूंगा, और वो जो है उस टाइम पे भले 60 रुपए कमा ले, लेकिन 20 साल के बाद में अगर 100 रुपए कमाता हूँ तो वो 300, 400, 1000 रुपए कमाएंगे। तो ये डिफरेंस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, और जो मैं बोलना चाह रहा था उसका ओपिनियन। एक और चीज मैं बोलना चाहता था इसी पे, कि चोरी लगता है सस्ता बट ओवरऑल बहुत महंगा पड़ता है। आपको बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, चाहे ये रिलायंस और बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो मैं जी में जब काम करता था तो मुझे पता चला अपने फाइनेंस के कलीग से, द हाईएस्ट पेड पीपल वी हैड इन जी वर नॉट द सीएमओ एंड द सीईओज एंड सीएफओज, दे वर ऑल लॉयर्स। क्योंकि लॉयर्स एंड टैक्स वाले लोग जो थे, क्योंकि उनको टैक्स बहुत, जी जो थी टैक्स बहुत कम देती थी, बहुत, तो जितने भी टैक्स के लॉज हैं, कैसे लीगली बिना कानून तोड़े हुए बट टैक्स बचाना है, तो उसके लिए कितने सारे जो टैक्स के जो लॉज हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, हर कंट्री में उनको टैक्स का जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है और लीगल एक्सपर्ट है उसको वो रखेंगे। या जितने बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या बिलियनर्स हैं, तो उन सब का बहुत बड़ा कॉस्ट का बजट होता है, उनका टैक्स वालों का, उनके अकाउंटेंट का और उनके लीगल का। ये तीन बहुत चीज है। अच्छा, आपको एक टैक्स वाला बंदा रखना पड़ेगा, दूसरा आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, और तीसरा एक लीगल रखना पड़ेगा। अच्छा अकाउंटेंट इसलिए सबसे जरूरी है किसी भी स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, कि आपके अकाउंटिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो फिर आप लीगल प्रॉब्लम फंसोगे, फिर आप टैक्स प्रॉब्लम फंसोगे, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम फंसोगे। तो ये टैक्स, लीगल एंड अकाउंटिंग, ये तीन जो चीजें हैं, मैं बोलता हूँ कि हर स्टार्टअप को और हर एंटरप्रेन्योर को बहुत सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग केस में उनके कोई फ्रेंड या फैमिली हो जाते हैं, कर देते हैं, जो स्टार्टअप है पैसा नहीं है, बट फैमिली फ्रेंड में कोई ना कोई मिल जाता है, कोई प्रो बोनो कर दे या जैसे भी करे। लेकिन बिना इन तीनों के आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोचो भी नहीं। आपके पास आइडिया होगा वो तो, ज्यादातर लोग सेल्स और मार्केटिंग के सोचते हैं। मैं बोला नहीं, सबसे पहले एक टैक्स वाले से बात करो, एक लीगल वाले से बात करो, अकाउंटेंट से बात करो, बिकॉज ये तीनों मेक श्योर करेंगे कि आपका बिजनेस एथिकल, लीगल साइड को फॉलो करे। जब आप छोटे हो तब से स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपकी प्रॉब्लम्स और बड़े होते जाएंगे। पहले आपको केवल आपको अपने सिटी का टैक्स भरना पड़ता था, अपने स्टेट का, अब तो आपको ग्लोबल कंपनी बन गए तो आपको दो कंट्री का टैक्स लीगल समझना पड़ेगा। तो ग्लोबल बनने के ये सब डाउन साइड, टू बिकम ग्लोबल, तो आपको दोनों कंट्रीज के, जितने कंट्रीज में आप ऑपरेट करें उतने कंट्रीज के आपको टैक्स, लीगल, अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। दिस अ रिस्क ऑफ बिकमिंग ग्लोबल, बट ऑल ऑफ अस वांट टू लाइक टू बी ग्लोबल। जैसे कि विशाल ही, अब आप सिंगापुर में काम कर रहे हो तो आपको सिंगापुर का भी पता है कि वहाँ का लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है,
वहाँ का भी आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ का भी सारे लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई वांट टू हाईलाइट द फैक्ट कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज, टैक्स, लीगल, अकाउंटिंग। आई मीन एथिक्स तो पर्सनल स्टैंडर्ड है, तो मोरल साइंस का लेसन से एथिक्स नहीं आता, इट्स मोर बाय द इंटीग्रिटी, इंडिविजुअल लेवल पे बचपन से क्या सीखा या पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या, ऑल दोस फैक्टर्स। तो एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, बट उसका इन्फोर्समेंट बिजनेस वर्ल्ड में दिस इन फंक्शंस के थ्रू होता है। Yes, Mr. Karthikeya, please. So I would really want all of your opinion on this, and this, like what Mr. Goswami said कि वो ना कि short run एक competition में रहने के लिए you चलता है इतना करना, तो this is a problem like we as business are facing, and this is of course where your ethics come into the place. So like we manufacture chemicals for textiles, and textile में क्या होता है, there is a system that more than 98% of the units which are present, I'm talking nationwide, not just in Jodhpur, but nationwide ऐसा होता है कि you know there's a person, उसको master बोलते हैं, and then he is the one who has the job कि कौन सा chemical आएगा, कितना use होगा, he knows how to dye things, print things, and ये काफी जगहों पे होता है handicraft में भी, but more than 98% of units में ऐसा है कि you have to bribe them per kg आप इतना ले लेना, and then you know मेरा material आप खरीदो, because the owner, he is usually more concerned with the numbers and not the technical part. So this is again a very major reason जिसमें my father, of course, he decided कि ऐसा नहीं करना है, so we mostly focus on the other two parts. But then as what Mr. Goswami said with reference to that, do you really think that, you know, when I join in properly, is it fine for me? Because when we do such kind of a thing, we are not doing it for the shorter run, we have to do it you know, for as long as it goes on. So I just want your opinion on this part. India, Samaji बताइए. you know, see, आज देखिए Asian countries especially, you know, so they are in a journey actually, and India में तो है ही, and after this GST implementation, this journey has already started towards this making it a transparent business platform and simplification of the taxes. तो ये एक जर्नी चालू हुआ है. It doesn't mean that आपको हम लोग पूरा 100% अभी तक इसमें ethical हो गए हैं, ये भी नहीं है. Because why I'm telling कि भाई the small businesses, their basic problem for today is how to survive. If they are not surviving for next 3 months or 1 year or 2 years, they are definitely not in the business. और जैसे मार्केट प्लेस में आपको अगर कम्पीट करना है और अपने इकोसिस्टम ऐसे ही बना के रखा है, so you have all the time, you can always tell the people that look, I am not doing anything wrong here, why you have not stopped others, why you are only pointing it to me, you have the room here. But बाकी countries में वो room होता नहीं है, because they have already made such a rigid and sound framework that they can't tell that. But that's not the case within Asia. Whether you say it in India or Thailand or Malaysia, Singapore, I'm just leaving aside, Indonesia, even Japan. So it is already, how to say, it is an unwritten kind of a norms, I should say. But ethical, you know, is a very broad term. Ethical, just say we started the discussion with integrity and honesty and all those things. Then trusty kind of a management mindset. So these sort of things, as long as you are maintaining and you are reducing such kind of exposure of kacha kam, I think you are in a right path. So there, if somebody still comes by, आप ethical नहीं हो, आप business बंद करो, तो बोला अरे भाई okay, I will stop the business. Then I'm asking you, my other friends, to also stop the business. Go and stop that business. Then I will also stop. So that room is still available within India. That's the real ground reality actually.
So मैं इसमें एक और चीज अगर आपको बताऊं तो like a lot of my business colleagues and my father's business colleague they do such kind of things, वो master को देना करना and everything, but आप उनसे कभी भी discuss कीजिए, so they have very straightforward motive कि यार at the end of the day business लेकर के बैठे हैं पैसा कमाना है. So I don't think कि in a way वो भी कहीं गलत है. What they are doing is कि of course उन्होंने कोई NGO शुरू नहीं किया, they have to earn, and if this is a way of earning the business, it's fine. But of course this is as you said कि ethics बहुत wider term है. So probably for them उनके लिए ये उनके ethics के against नहीं है, but then probably for us ये उसके against है. So of course that is where the clash is. They are at a stage to justify themselves as well. ऐसा नहीं है कि they cannot do that. मैं कई बार इस चीज में सोचता हूँ, तो I personally think that most of the time it is the business owners who can be blamed for this, because उनकी फैक्ट्री में ही ऐसा कुछ हो रहा है, and a lot of them unfortunately they are aware of such activities, but then उनका पॉइंट भी यही है कि at the end of the day हमको पेपर्स पे नंबर चाहिए and मिल रहा है, तो what's the big deal? कोई खा रहा है तो खाने दो उनको. And I personally believe this is where the very major problem arises. But again, इन सबके बीच में we are a very small thing जो अटक के बैठ गए हैं. And my father is quite open to these things. मैं वो भी पता, तो he always एक दो बार बात हुई है, तो पापा कई बार बोलते हैं कि it's fine if you want to do such things, so go for it. But he always chose not to do it. That's of course his part. तो मैं बेसिकली मैं बहुत झूल रहा हूँ अभी कि where to go, what to do and what not to do. I can understand fully your conflict, but here this is a journey actually within Asian context. This is a journey we have, and here the corruption is still in the very basic level. हर जगह आपको पैसा खिलाना पड़ता है, ये सब तो norms है. Even the big companies are also bribing. Okay, it's not that they are not bribing. So Goswami ji, sorry. One point on that कि sorry मैं बीच में ही भूल जाता हूँ कि आप जब सीड जो प्लांट करते हो ना पेड़ का, किसी भी चीज का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वही बाद में वो बरगद का पेड़ बन सकता है, या वो बेकार का छोटा मोटा हो सकता है. तो सीड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप कंपनी जब छोटी हो, जैसे MSME की बात करें हम लोग इंडिया में, तो छोटे लेवल पे ही अगर हाई इंटीग्रिटी और एथिक्स को मेंटेन करेंगे, तो कल का वो जब SME से या MSME से बड़ा होगा, MSME से SME बनेगा, फिर उसके बाद और बड़ा होगा, तो वो सीड कैसा उसमें डाला गया तो बहुत मैटर करता है. तो उसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो थे, जो भी फाउंडर्स थे, चाहे वो छोटे से गांव के किसान हो, उन्होंने खेती का बिजनेस स्टार्ट किया, एग्री बिजनेस, और धीरे धीरे बड़े होते गए. बट वो 1000 रुपया से लाख, और लाख से करोड़, और करोड़ से 100 करोड़ की जो जर्नी है ना, तो उसमें सीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में ही अगर जो फाउंडर्स ने काफी हाई वैल्यूज, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, तो फिर उनके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे. उनकी कंपनी के जो नए एम्प्लॉयज ऐड होते जाएंगे, वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ही इस बात को बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किया जाएगा कि हमारे लिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो उस पर कॉम्प्रोमाइज अर्ली स्टेज में नहीं करना चाहिए कि अभी हम लोग बहुत छोटे हैं. एंड इंडिया में भी बहुत कंपनी जैसा कर पा रही है. क्यों? क्योंकि दे नो कि हमको लंबी रोज के घेरे, हमको काफी दूर जाना है, तो दे फॉलो दोस. एंड जो शॉर्टकट मारते हैं, ऑब्वियसली वो शॉर्टकट छोटे लेवल पे हो जाते हैं, और उसमें भी आज में कल फंसी जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे कंप्लायंस या गवर्नेंस जो छोटा मोटा क्या आप मान लीजिए गलत काम कर रहे हैं, आप छोटे गांव में कोई आपका बिजनेस है, बट आपके मुखिया को भी पता है कि आप पैसा देते हो, वो भी आपसे ले रहा है, वो भी दे रहा है. आपके MLA को भी पता है, MP को भी पता है. हर लेवल पे आपको खिलाना पड़ेगा जितना अंदर जाओगे, पर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो कोई आपको डरा नहीं सकता. आप MLA MP तो छोड़ो, CM या कि PM भी आपको डरा नहीं सकता. और बहुत सारे एग्जांपल्स भी है कि बड़े बड़े पावरफुल लोग भी छोटे छोटे बिजनेस के सामने हार गए, बिकॉज वो छोटा वाला बिजनेस बहुत करप्ट था, इंटीग्रिटी बहुत हाई थी, तो उनको कोई हिला नहीं पाया. हाँ, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आती हैं, लेकिन हाई स्टैंडर्ड्स एथिक्स मेंटेन करने का लॉन्ग टर्म में काफी एडवांटेजेस मिलता है. Yes, yeah. So this is very important, that putting the seed from the beginning. That's the first thing. That is the integrity and intention. That's what I'm talking about. Now, intention has to be one of a good one. Okay, that I'm here to make money and grow my company, and whatever money it is there, it will be remaining in the business, and I will further grow, so that my employees can also encash it. My stakeholders also get benefited. My customers are also getting satisfied. So this cannot be compromised.
Now the catch is, it calls for a cultural change. Now, if you want to change a culture in a particular company, because I give a lot of emphasis on cultural changes. What is cultural changes? Cultural changes is nothing but changing yourself. So if the top leader himself is a corrupt, and if he is not changing, you cannot expect any sort of cultural changes or any sort of behavior what he is having at this moment. If he is not changing, we can't expect a cultural change within the organization, whatever you do. So similarly, not only the top guy, but whoever the associate functional leaders, each and everybody has to go through that changes and to come to a conclusion. Then only these overall cultural changes take place in an organization. Similarly, within this macro environment of India, I can be 100% integrated and honest and this kind of a person. But if I'm working in an ecosystem which is not supporting me, why shall I be? This question will come to everybody. That ultimately I'm here to make money, to grow my business. So if that is not happening, so why only me and why not others? So this is the struggle most of the people are going, because there are also quite a few honest and highly people with high integrity. And then there are other kind of people. That's the reality today. So these cultural changes will not take place that easily. The journey has started with this GST and all sorts of things, whatever Modi government was trying to do. This journey has started. Now, this journey, when it will be coming to the maturity well, where all the players in this ecosystem will be following the same thing, then we can expect, yes, everybody can practice this. But for the time being, practicality purpose, to staying floated in the business, that is the first and foremost important part. So there we have to see that how much really we can afford to be really ethical in terms of transactions. हाँ, आपने अगर कोई smuggled goods कुछ use कर लिया, ये not to do those kind of things. But if the system is like this, that India was running on a parallel economy of cash economy, so they are getting into the real transaction economy right now. So as and when the things are we are getting 100% transferred into that kind of platform, I will also work in the same way. So that I will go to a restaurant, he will also give me a pakka bill. I will go to a car mechanic shop, he will also give a pakka bill. I will go to buy a motor, he will also give me a pakka bill. So I will also give a pakka bill. That's what my view is. Yes, Ankit, please. Ethics at the beginning of the company plays a very important role. And like Mr. Goswami rightly said, that you should benefit your shareholders and the people who are participating in with you in growing your company. So I was just going through the net and I just came across this article of Dhirubhai's. So just a small brief of how he started his journey. So Dhirubhai, यहाँ पे लिखा है, Dhirubhai returned to India in 1957 to start his own business with his cousin. He started by importing polyester and exporting spices to Yemen. He started expanding his business with the help of public issues. Reliance raised cash from the Indian public a couple of times in 1980s through equities and debentures. It was in the 1980s, after Reliance aggressive fund rising plans, that the Indian stock markets started witnessing some activity. Such was the financial acumen of this man that Reliance never paid a single penny income tax to the government, even after 2 decades of its listing in 1977. So he started his business in 1957 and they said the Reliance never paid a single penny income tax to the government even after 2 decades of its listing in 1977. Reliance showed profits in such a manner that they did not have to pay any taxes to the government, but still went on giving dividends and bonuses to its shareholders. It was only after India introduced MAT regime that Reliance was forced to pay taxes.
सो गवर्नमेंट को फायदा हो ना हो, उन्होंने शेयर होल्डर्स को इतने डिविडेंड्स और बोनस दिए कि आज गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रही है रिलायंस जैसी कंपनी में। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग जर्नी अच्छा होना चाहिए और काफी वो ट्रांसपेरेंट, ये वो एथिक्स वेथिक्स, बट आप देखें कि गवर्नमेंट को फायदा हुआ ना हुआ, धीरू भाई अंबानी जी का सोच बहुत बड़ा था। उन्होंने शेयर होल्डर्स का फायदा कराया, शेयर होल्डर्स ने उनको फायदा कराया, और आज गवर्नमेंट भी कमा रही है उनके इन्वेस्टमेंट से। अंकित थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा अंबानी जी के मैंने बारे ये में। स्टोरी पढ़ा है मैंने, मतलब मैंने हाँ नहीं, आपको स्टोरी सही है, आपके फैक्ट्स क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें एक और फैक्ट ऐड कर रहा हूँ। फैक्ट में ये है कि उस जमाने में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उस जमाने में जब इंडिया का पूरा एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी था, सब कुछ लाइसेंस कोटा परमिट राज था इंडिया में, तो उस समय में धीरू भाई अंबानी के पास ये फैसिलिटी नहीं थे जो आज जो इंडिया में आ गया है कि आप बैठ के आप DIPP और उसके जो प्रपोजल डालो। उस जमाने में सारा काम होता था कि आपको टॉप लेवल पे प्रधानमंत्री को या PMO के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आपको पैसा खिलाना पड़ेगा, पता था सबको, उनसे टाइम मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया कि इंदिरा जी से केवल कुछ मिनट का समय लिया, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट के रास्ते में, कहीं बहुत छोटा मिनट का था, और उसमें धीरू भाई अंबानी ने उनको एक कान में छोटा सा एक बात बताया कि राजीव जी का मैंने सॉरी इंदिरा गांधी ने कुछ नाम लिया उनके पुराने ये का, नेहरू जी का या किसी का, कि ये हिसाब मतलब कि नहीं कि उनके जो फाइनेंशियल सीक्रेट जो उनके पता थे, तो खटाक से इंदिरा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है हो जाएगा। तो उन्होंने इंदिरा जी को जस्ट एक तरह से ब्लैकमेल किया या जो भी किया, उनके कान में ये डाला, और उसके बाद हम आपके लिए ये करा देंगे। तो पैसे का जो हिसाब किताब उन्होंने जो बोला कि आपको इतना पैसा हम दे देंगे, इतना करोड़, ये जो भी देंगे, एग्जैक्ट टर्म्स गूगल करना पड़ेगा, बट धीरू भाई अंबानी ने इंदिरा जी के कान में ये डाल दिया कि आप मेरा लाइसेंस अप्रूव करा दो और आपको भी बहुत फायदा होगा। तो वो छोटा सा स्टार्ट किया उन्होंने, आज हो गया। तो पुराने जमाने में एक पेपर वर्क चलता था या उससे भी ज्यादा ये चलता था। आज के जमाने में डिजिटल बढ़ गया है, तो चाहे आप किसी को भी जानते हो, आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हो, चीफ मिनिस्टर को जानते हो इंडिया में, या आप PMO ऑफिस के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को जानते हो, बट सारा काम धीरे धीरे ऑनलाइन होने लगा। पेपर भी आपको DIPP का प्रपोजल आपको जाएगा तो आपके ऑनलाइन जाएगा। तो ऑनलाइन जाने का फायदा क्या है ना, कि आपका ट्रेल रहेगा, और कहीं पे कोई ऑफिसर आपका फाइल अटका रहा है, बैठा हुआ है, जो ये कहते हैं पैसा खाने के लिए, तो उसमें क्या है कि उसका भी ट्रेल बन रहा है कि किस पर्टिकुलर सेक्रेटरी के पास अटका हुआ है, या किसी सेक्शन ऑफिसर के पास अटका हुआ है, किसी क्लर्क के पास अटका हुआ है। तो ऑनलाइन में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि फाइल वहां पे अटका हुआ है, और जो टॉप लेवल का जो लीडरशिप है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये होता ही है कि पता कि ये डिपार्टमेंट में फाइल अटक गया तो ऑटोमेटिकली CEO लेवल तक एस्केलेट हो जाएगा। अब पॉलिटिकल लेवल पे भी हो गया है कि आपके जो गवर्नमेंट का जो DIPP है या PMO है, जो पावरफुल लोग हैं, उनको गांव-गांव का पंचायत लेवल तक का खबर है कि कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, और वो IAS खा रहा है बहुत, या वो पर्टिकुलर एरिया में पंचायत वगैरह भी, दे हैव दैट। Continue please. Yeah. अतुल जी, मैं एक चीज बोल रहा था, मैंने जो अभी कहानी पढ़ी, मैं मतलब मैं विसल ब्लोअर में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, क्या कान में उन्होंने बोला। मैं जस्ट आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ कि उनके पास दो ऑप्शन थे, either to pay income taxes, either to pay their shareholders and save taxes in a legally manner. तो उन्होंने क्या चूज किया? इन दोनों में उन्होंने चूज किया to save taxes and to give the benefits to the shareholders in form of dividends and bonuses. तो इसमें मेरा ये फोकस है कि इसमें आपका क्या कहना है? मैं विसल ब्लोअर, उन्होंने एथिक्स में उन्होंने क्या किया नहीं किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इस चीज में जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर टैक्स बचाया तो क्या किया? सही किया कि उनको टैक्स देने चाहिए थे और शेयर होल्डर्स को जो है बोनसेस शायद कम देके टैक्स भरने चाहिए। तो मैं ये चीज में जानना चाहता हूँ ज्यादा आपका व्यू। हाँ, तो अंकित जी, इस पे पहले भी डिस्कस किए थे लास्ट वीक कि टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए। टैक्स जो है बेसिकली बर्डन है, और टैक्स जो है बिजनेस के लिए खराब है, और गवर्नमेंट के लिए खराब है, और हम सब के लिए खराब है। देयर शुड बी जीरो टैक्स। एंड कैसे काम चलेगा? तो वो टैक्स जो अभी, वो टैक्स तो जो बात करते हैं कंजम्पशन टैक्स, कि मुकेश अंबानी जी $1 बिलियन का उन्होंने
अपना जो वो बनाया, टीलिया बनाया बॉम्बे में, तो उनके घर पे टैक्स ले लो, उनका $1 बिलियन इनकम पे टैक्स मत लो कि अंबानी जी के पास 25 बिलियन है, 30 बिलियन है, दैट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस। आप टैक्स लगाओ उस प्राइम स्पॉट पे जहां पे बगल में झुग्गी झोपड़ियां भी है, लेकिन साथ में सबसे सुंदर व्यू है पूरा आपका बॉम्बे का, जो सबसे अच्छा स्काईलाइन आपको दिख रहा है, सेम एप्लीकेबल इन न्यूयॉर्क या कहीं भी। तो उस व्यू के लिए, उस लोकेशन के लिए आप उनसे $1 बिलियन का अगर घर बना रहे हैं तो उसमें $2 बिलियन टैक्स वसूलो उनसे, नथिंग रॉन्ग विद दैट। और आई एम श्योर कि अंबानी जी को देने में दिक्कत भी नहीं होगा, उनके पास इनफ पैसा है। और इस तरह के जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज जो भी है, तो उनपे उनके कंजम्पशन पे टैक्स लगाओ। उन सब की जो लाइफस्टाइल जो है, बड़ी बड़ी जो उनके फैक्ट्री लगा रहे हो उसको उस पर टैक्स मत लगाओ, लेकिन फैक्ट्री के बाद जो एम्प्लॉयज के उस पर टैक्स मत लगाओ, उनके कंजम्पशन पे टैक्स लगा दो। उनके कि बड़ी बड़ी 10 लैम्बोर्गिनी रखे हुए हैं, फेरारी कार रखे हुए हैं, या आपने 3-4 उनके घर में ही, जो अंबानी का एग्जांपल है, तो उनके घर में ही 3-4 हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स लैंड करने की जगह उन सब चीजों पर टैक्स लगा दो, और गवर्नमेंट फिर भी के पास इनफ पैसा, ज्यादा पैसा आएगा, rather than trying to tax the income. Don't tax the income, tax the consumption. That's my point of view. अतुल जी, मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ। इंडियन इकोनॉमी में, पता नहीं यूएस, आप जो वेस्टर्न इकोनॉमी है शायद उसमें ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहेगा, बट यू आर सिंपली सेइंग टू टैक्स द रिच पीपल एंड टू गिव द मनी टू द पुअर इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स, मनरेगा स्कीम, ये नरेगा, मनरेगा, प्रधानमंत्री योजना। तो आप बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे अपर मिडिल क्लास या रिच पीपल से आप टैक्स लो ऑन कंजम्पशन, अंबानी जी टैक्स देंगे, और आप वो मनरेगा नारेगा जो स्कीम है आप वो जाके गांव-गांव में आप बांटे, और आप वो जो पुअर है, यू आर मेकिंग देम मोर पुअर बाय making them availing these schemes and making them नहीं, not at all, not at all. I'm not in support of those टैक्सेस schemes. सब पे लगना चाहिए, ये सिर्फ रिच पीपल पे और अपर मिडिल क्लास क्यों टैक्स दें और सब्सिडी क्यों दें, और वो पुअर पीपल से सब्सिडी क्यों कंजम्पशन करें? मैं बस ये बोल रहा हूं। Ankit ji, I'm absolutely against these schemes and these things. अभी जो बहुत न्यूज़पेपर में और टीवी में सब जगह देख रहे थे कि हजारों लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोग पैदल दूर दूर तक जा रहे हैं, उनके पास बैंगलोर से, हैदराबाद से, जहां भी उनको, जब ये कोरोना के बाद पैदल, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं बची। तो मैं अगेन ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों के उनके इस पे टैक्स, स्कीम्स में फायदा नहीं है। मनरेगा हो, चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, ये फलाना राजीव योजना हो, उसमें ज्यादा फायदा नहीं है। मोदी योजना हो, उसमें ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा है कि आप गांव-गांव के लोगों को, हर इंडिविजुअल को, उनके कोई अगर ना छोटा सा दुकान चलाना चाहता है, एमएसएमई है, बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उनको आप इनकरेज करो और उनको लिए आप लोन दो। बहुत सारी इस तरह की योजना है कि लोन दो, फ्री में मत दो, डोनेशन मत दो, सब्सिडी मत दो, लोन दो। बाद में वो लोन कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ज्यादातर लोन नहीं दे पाते, बट ये तो बहुत सारे बड़े बड़े फेमस एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी होता है कि दे आर नॉट एबल टू सक्सीड, फेल हो जाते हैं। बट हर छोटे से गांव के एक साइकिल का बिजनेस करता हो, टायर का बिजनेस करता हो, दूध का बिजनेस करता, उन सबको आप एंटरप्रेन्योर के तरह ट्रीट करो, उनको गवर्नमेंट से लोन दो, फ्री में सब्सिडी नहीं, लोन, और लोन को सब्सिडाइज दो। बाद में जब वो कमाने लगेंगे तो फिर उनसे पैसा लो, और जो कि बहुत सारी योजना बहुत सारे बना, और गवर्नमेंट का काम है कुछ फ्री चीजें देना। वो लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो हुआ है ना, वो बहुत बड़ा मैजिकल चीज हुआ कि डायरेक्टली बीच के सारे ब्रोकर्स चले गए, चाहे वो बैंक का जो दलाल था पैसे खाता था, चाहे वो इंश्योरेंस का। अब क्या किया कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को सब्सिडी ट्रांसफर करना था, तो डायरेक्टली उन्होंने डिजिटल जो बैंकिंग इंडिया में ला दिया। हर आदमी, हर गांव-गांव में लोगों के पास बैंक अकाउंट है। अचानक जो उनको देनी थी, मतलब डायरेक्टली उनके डायरेक्ट फंड ट्रांसफर उनके बैंक में हो गया। कोई बैंक से, ना एलआईसी से, ना एसबीआई से, ना किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फंड ट्रांसफर गवर्नमेंट का directly to the people's bank account happen. I think that is what I am supporting. Okay, Neeraj, yes, please. You have some. Yeah, hi Vishal. Sorry, I joined late today. शुरू में एक बार 2 मिनट 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर पाया, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई एंड आई हैड टू लीव। मैं अभी जब ज्वाइन किया, जब सुन रहा था अतुल सर को, ही वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग कि इंदिरा जी से मिले और उनको ऐसा बोला। देयर इज अ मूवी इन बॉलीवुड, I don't know how many you have heard about it, by the name Guru.
गुरु अगर किसी ने देखी है तो उसमें ये कहानी बड़ी अच्छे से उस मूवी में दिखाई गई है। और वो मूवी बोली जाती है कि कुछ कुछ ये रिलायंस एम्पायर बिल्डिंग ऑफ दैट एंड एवरीथिंग उसके अराउंड की स्टोरी है। वो काफी देखने लायक मूवी है वो, मतलब काफी इंस्पायरिंग सी स्टोरी बना रखी है। और थैंकफुली अभिषेक बच्चन उसमें स्टार हैं और उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। तो मैं एक उसका बोलूंगा कि थोड़ा टाइम मिले लॉकडाउन में तो एक बार ढूंढना गुरु मूवी, अगर आप देख पाए तो। दूसरा नीरज एक चीज ऐड करना चाहूंगा बिफोर। वेरी इंस्पायरिंग मूवी, वेरी इंस्पायरिंग। तो उसकी जो विद्या बालन को जो बीमारी है वो मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विद्या बालन आपने देखा होगा कि व्हीलचेयर पे चलती थी, तो मुझे भी सेम चीज है। बट फॉर्चुनेटली मैं व्हीलचेयर पे नहीं हूँ। ओके ओके, आप कंटिन्यू कीजिए नीरज, सॉरी। ना इट्स लाइक आपको इतना सुनते हैं हम और आज ऐसा पता चला तो आई एम लिटिल बिट शॉक्ड। ओके, कमिंग टू टैक्सेस पॉइंट, दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम की बात होती है हमेशा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अतुल सर वाज ट्राइंग टू से, जो उन्होंने बोला कि ट्रांजैक्शन टैक्स या कंजप्शन बेस्ड टैक्स और वो सब जो बातें बोली, ये बहुत पुरानी थ्योरी है अभी आज के टाइम पे। मतलब काफी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसको प्रपोज कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने बोला है कि ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स होना चाहिए बस। इसका एक अलग सा एक मॉडल जो निकल के आता है वो ये है, अंकित वाज वेरी अगेंस्ट कि अमीर लोगों से पैसा लेके और इधर देने का क्या मतलब बनता है। ये मतलब इस तरह से बनता है कि आप जब इनकम पे टैक्स लगाते हैं ना तो लोगों को चोरी के ज्यादा मौके मिल जाते हैं। अब कुछ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की देखता हूँ, स्टोरीज पढ़ता हूँ, उन्होंने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो विड्रॉ करते हैं ना अपनी सैलरी, क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरह से बना के रखते हैं कि मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जो भी हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपनी सैलरी बहुत ही मिनिमम रखते हैं, उसमें कोई टैक्स ही नहीं बनता है। लेकिन अपने घर चलाने के लिए वो सारे अपनी कंपनी से बेनिफिट ले रहे हैं। गाड़ी कंपनी से आ रही है, घर कंपनी से आ रहे हैं, नौकरों की सैलरी कंपनी से आ रही है, खाना पीना जो भी उसको आइटम चाहिए घर के अंदर वो सब कंपनी के रोल उसे आ रहा है, लेकिन उसकी सैलरी के थ्रू नहीं आ रहा है। तो वहां पे क्या होगा, अगर आपका ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है या कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, तो जो ये इस तरह की चीजें होती है कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं लेकिन इनकम जीरो दिखाते हैं अपनी, और लाइफ में उनको जो भी चाहिए वो सब मिल भी रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मतलब इस तरह से वो बना देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग माय किड्स एजुकेशन एज वेल इन यूएस। तो वो सब जो है उसके अगर आप टैक्स करेंगे ना तो फिर बचने के रास्ते बहुत कम रहेंगे। अब किसी को भी माचिस तो खरीदना ही है जाके, ठीक है, तो माचिस के ऊपर टैक्स लगाओ। अब माचिस खरीदने के लिए जो पैसे कमा रहा है उस पैसे पे टैक्स मत लगाओ। अब हर किसी को अपना जीवन यापन के लिए पैसा तो लगेगा ना, कुछ भी खरीदेगा, खाएगा, पिएगा, पहनेगा, रहेगा जहाँ पे भी, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी आप उसको टैक्स करो। तो ऑटोमेटिकली अब जो रिच आदमी होगा, जिसके पास पैसा होगा, ऑटोमेटिकली वो ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा तो ज्यादा टैक्स पे करेगा। जिसको कम ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है उसका कम टैक्स आएगा। तो वो इस तरह की थ्योरी है। और कहीं ना कहीं हम टैक्स को बहुत गंदी चीज मानते हैं कि ये टैक्स क्यों है, टैक्स के बिना नेशंस नहीं चल सकती, टैक्स के बिना कुछ सर्वाइवल नहीं है, गवर्नमेंट्स कहाँ से चलेगी। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पे कहा था कि जो भी टैक्सेशन सिस्टम को उन्होंने अपने वर्ड्स में कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि जो भी आपकी आमदन है उसका 1/6 टैक्स लेना एक राजा का हक बनता है। मतलब उतना वो टैक्स लेना चाहिए, उससे ही उसको अपने राज्य को चलाना चाहिए। 1/6 कम्स अराउंड 17 to 18%। उससे ऊपर अगर राजा टैक्स लेगा तो जनता चोरी करने की सोचेगी, और वो गलत भी है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से इसको उस जमाने में डिफाइन किया था। और ये 70 to 18% जो आज के टाइम पे हमारा 18% का स्लैब है अपने नए टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी में भी सर्विसेज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करके, क्योंकि मोदी एंड जो ये सब इकोनॉमिस्ट और ये जो सब इनकी पैनल है ना, ये बहुत प्रभावित है उन सब चीजों से जो पुराने टाइम में इंडिया से हुई है। तो ये उससे कहीं से कहीं ड्राइव हुआ है, लोगों को ऐसा भी मानना है। तो टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ इट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, उसके बहुत अलग अलग आज के टाइम पे थ्योरीज आ रही हैं, बहुत अलग अलग तरीके पॉसिबल हैं जिससे इसको बेटर बनाया जा सकता है। सो इसमें एक ऐड कर देता हूँ मैं। तो अभी हमने बात किया कि ये टैक्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर गवर्नमेंट ने वैसा कर दिया तो फिर हमारा क्या हक बनता है, उसको रूल को माने या ना माने। यस संकेत प्लीज।
गवर्नमेंट माने या ना माने, देखिए मैं तो एक चीज बोलूंगा कि यूएस का ही अगर अपने टैक्स स्ट्रक्चर लिया जाए, सो वहां पे टैक्स रेट्स आर क्वाइट हाई, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है वो टैक्स लेके, वो गरीब अमीर दोनों को जो है इतना अच्छा बेनिफिट दे रही है। वहां पे पब्लिक स्कूल्स में आप मतलब रिच पीपल गो टू प्राइवेट स्कूल, बट पब्लिक स्कूल भी उनके कुछ ज्यादा खराब नहीं है। दूसरी चीज की हॉस्पिटल्स, मतलब अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, या ओबामा जो उन्होंने निकाला था, क्या था वो, ओबामा ओबामा केयर, जिसमें उन्होंने सबको जो है, अतुल जी शायद ज्यादा जानते होंगे, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट काफी द पीपल कैन अवेल द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, या फिर फ्री में भी। जो कि यहाँ पे अब देख लिया जाए कि वहां पे अगर टैक्सेस दे रहे हैं तो वहां पे सही जगह जा रहे हैं। इंडिया में लोगों को टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बेशर्ते कि बहुत लोग को आपत्ति नहीं होगी, बेशर्ते कि जो वो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को वो सही जगह यूटिलाइज हो। देखिए आज से पहले इतने करप्शन हुए हैं इंडिया में, मैं पॉलिटिकल कौन सी पार्टियों ने करप्शन किया मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कौन सी गवर्नमेंट ने किया मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब लोग मेरे से यहाँ पे बड़े हैं, सब लोग को पता है। फ्रॉम आपके चारा घोटाला से लेकर कॉमनवेल्थ घोटाला तक, डिफेंस डील घोटाला से लेकर सब कुछ, तो लोग के ऊपर पहला भरोसा उठ गया गवर्नमेंट का कि हम लोग जो आज वी आर अर्निंग हार्ड अर्न मनी एंड वी आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मेरे से पैसे लेके आप यू अवेल द स्कीम्स टू द पुअर पीपल, यू गिव द स्कीम्स टू द पुअर पीपल। आज मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे खुशी होगी कि कोई गरीब घर के उसमें वहां पे आपका गैस जलेगा किचन में, वहां की कोई लेडीज जो घर पे रहेगी वो अच्छे से खाना बनाए, बीमारी नहीं होगी उन्हें, तो मुझसे ज्यादा कोई और कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे दुखी कहाँ पे पहुंचेगी, या मुझ जैसे लोगों को दुखी कहाँ पे पहुंचेगी, मेरे से जो टैक्स लिया गया है, अगर आप उसको मिसयूज करके आप उसको टैक्स, आप गवर्नमेंट जो है उसमें आप स्विस बैंक में भेजो, या फिर आप जो है उसको यूटिलाइज सही से नहीं करो, या फिर आप उसको करप्शन में यूज करो, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप, और मैं इसलिए भी बोल रहा था कि आप पुअर पीपल को चार्ज करो, ताकि पुअर पीपल जो है मिनिमल चार्ज करो, ताकि वो और वो लथार्जिक ना बने। इंडियन पीपल आज जो हम लोग की मेंटालिटी है वो हम लोग की एकदम टोटली डिफरेंट है। आज यहाँ पे स्कीम्स गवर्नमेंट ने इतनी दी थी, बिहार झारखंड इस तरफ की, आप डेली आप 100-200 रुपए हर आदमी कमा ले रहा है। आज क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ लोगों को जो मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं, वो मेरे अभी बंगाल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वहां पे स्कीम चल रहा है, दे आर गेटिंग पेड 200-250 रुपीज पर डे मनरेगा स्कीम से। क्या हो रहा है वहां पे, वो जो बैठे गवर्नमेंट के ऑफिसर वो 50 रुपए लेते हैं दिन के, 200 रुपए इनको दे देते हैं, या 100 रुपए लेते हैं और 150 रुपए इनको देते हैं। कहाँ जा रहा है सर वो 150-200 रुपए जो जा रहा है, 250 रुपए मनरेगा स्कीम, वो किससे जा रहा है? अंबानी से, हमारे आपसे जा रहा है, या फिर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों से भी जा रहा है? तो आप खुश होंगे ये सुन के कि आज आपका और हमारा जो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को वो ऐसा मिसयूज हो रहा है? आप ऐसे स्कीम्स दो, आप इतना अपना वो कर दो स्ट्रॉन्ग, जैसे बोले ना एथिक्स, गवर्नमेंट एथिक्स प्लेज अ मेजर रोल सर। आज जिस दिन गवर्नमेंट, आज मोदी जी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है लोगों को, थोड़ा सा भी अगर आया है, टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं, आज जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, मोदी जी को पता है कि भैया ठीक है 1/6 टैक्स लेना चाहिए, जो चाणक्य का नीति था, जो भी डिस्कशन हमने की, पता है कि अगर आप 100 रुपए कमाओगे, आप 80 रुपए अगर टैक्स बनता है आपका, तो आप 20 रुपए आप संतुष्टि नहीं रहोगे कि आप भैया 80 रुपए आप ले लो टैक्स में और मैं 20 रुपए रखूंगा, नहीं, मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, आप 20 रुपए लो, 30 रुपए लो, 40 रुपए लो, मैं खुश हूँ। आप मेरे को 60 रुपए दे दो, आप 40 रुपए रखो, मैं तब भी खुश हूँ। लेकिन सर आप जहां ये उल्टा हो जाएगा, वहां तो हमें भी परेशानी होगी, और हमें पहले भरोसा आप दिलाओ ना। आज से 60 साल पहले गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्सेस को लेके क्या किया, कहीं यूज हुआ है? अगर मोदी जी, मैं बता रहा हूँ सर, ऐसे मोदी जी नहीं, मोदी जी जैसे अगर ईमानदार आदमी अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे होते ना, तो आज इंडिया सिंगापुर से बहुत आगे निकल जाता। आज सिंगापुर आगे इसलिए है क्योंकि उनकी लीडरशिप शुरू से एकदम जो थी वो एकदम एंटी ये आपकी ब्राइबरी पॉलिसी, और ये सारी जो चीजें हैं एंटी करप्शन पॉलिसी, उस पर डिपेंड थी। आपको पता है सिंगापुर का क्या हालत था? सिंगापुर इंडिया के बहुत बाद इंडिपेंडेंस गेन किया, और आज आप जाइए, आपको मैं 3 घंटे वहां पे कचड़ा ढूंढने का कोशिश कर रहा था सड़क पे, लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संडे को, और मुझे एक कचड़ा का टुकड़ा नहीं मिला। क्यों? वहां पे गरीबी नहीं है, मैंने आज एक बेगर को नहीं देखा वहां पे। क्यों? अब वो उनका पॉलिसी ऐसा रहता है कि ऑलवेज टैक्स द रिच पीपल। तो वहां पे भी सर आज इंडिया में गरीबी क्यों है? आप मेरे को एक सिंपल रीजन दो, वेस्टर्न में और यूरोप में इतनी गरीबी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे लोग समझदार है,
वहां पे टैक्सेस फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट स्कीम्स सारी वैसी इंप्लीमेंट की है कि किसी को बर्डन ना लगे। सर आप बर्डन मत दो किसी को, आप चार्ज करो, मैं कह रहा हूँ आप सब पूरा चार्ज करो, आप बर्डन मत दो। जिस दिन ये बर्डन हो जाएगा ना, लोग उस दिन टैक्स देना बंद कर देंगे, उस दिन गवर्नमेंट बैठ जाएगी और कभी भी जो है कंट्री कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। मैं आई मे बी रॉन्ग, मैं बहुत छोटा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, मेरे थॉट्स गलत हो सकते हैं, बट दिस इज व्हाट I have seen in the last 10 years in the business field. So this is my take on it. So yeah, so I'll add something. So sovereign level, government level is one ethics, obviously, you know, like we're talking कि leadership अगर ethical है तो सब लोग ethical हो जाएंगे, one thing है। दूसरा, I think it also comes from our like family members at times, कि जब when we were growing up and all, maybe we were taught कि यार बेटा इतना चलता है, इतना कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, और इतना भी नहीं करोगे तो भूखा मर जाओगे, इस टाइप का। तो आई थिंक यू नो दिस लाइक घर में जो घर के पेरेंट्स वगैरह है वो वहाँ की गवर्नमेंट है एक तरह से और जो बाहर जो है वो तो है ही, मे बी दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लाइक यू आर टॉकिंग कि टॉप लीडरशिप में गड़बड़ है तो नीचे गड़बड़ होना ही होना है। तो आई गेस लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स का एथिक्स का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो देखते हैं, जैसे अंकित ने बोला कि हाँ यार मैं पैसे दे भी दूंगा, अब जैसे बहुत सारा डोनेशन भी कलेक्ट हुआ, अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा या बाद में होगा या आई डोंट नो कि मैंने जो पैसे दिए वो सही में डोनेट ही होंगे या जाएंगे जरूरतमंद के पास, या कुछ और हो जाएगा उसका, या उसका हेवी चंक कुछ और में चला जाएगा। सो पीपल माइट बी रिग्रेटिंग आल्सो एंड अगले बार वो डोनेट नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। श्यामा सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आई थिंक लास्ट 5 minutes. Yeah. So no, it's I a think it's no, a it's very a interesting topic and very no, controversial no, topic. it's a very yeah, every day actually बहुत अच्छा लगने लगे मेरे को all the topics. So today's topic is even more engaging actually. तो जो newcomers है who are starting their life at this moment, you know, of course we have discussed the difficulties or the certain flaws in the policies whatever the country is taking. उसमें नहीं जाके, you know, focus on your personal integrity and your honesty and whatever you can do from that platform, you know, you should start doing that. And at the same time be practical, look at the ecosystem and keep your business floated. And आज का जो topic था ये तो मेरे ख्याल से first point, the second I think I was saying what collaboration and हाँ नहीं वो तो कंटिन्यू चल रहा है ना, तो एक टॉपिक खत्म हो so जाता है। I think to collaborate with the good lawmakers, okay, कि भाई अपने को ये एकदम सही ढंग से चलाना है, कैसे करेंगे इसको without hurting my business in this ecosystem. So we can always drag that wisdom from them and keep the business in the framework of whatever ethical points we have discussed today and keep running. In fact, I have seen कि you know जो ये टैक्स लीगल अकाउंटिंग वाले लोग हैं, सबसे पहले यही लोग सिखाते हैं कि सर ऐसे कर लो ऐसे कर लो। Exactly. So वो भी तो प्रॉब्लम चलता है। आप क्यों देते हो इतना टैक्स फालतू के? अरे क्यों देते हो? आपका टैक्स से कुछ होना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और रूल तो हर दिन चेंज हो जाता है, आप कितना मानेंगे, आप तो मर जाएंगे। टैक्स की चोरी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूँ विशाल जी। कश्मीर वैली में 17 to 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं पता है कितने हैं, ठीक है। और अभी जब अभी ये लास्ट ईयर ही अगस्त में हुआ है ये जो भी 370 वगैरह वाला, उससे पहले बहुत बड़े बिजनेस थे कश्मीर वैली। ऐसा मतलब कोई ये नहीं है कि बहुत ही पुअर है या ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा कमाने वाले लोग भी हैं, और कई फ्रूट्स वगैरह के जो बिजनेस है उनके जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो तो बहुत ही अच्छी इनकम वाले लोग हैं। लेकिन कहीं मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पूरी कश्मीर वैली में एक भी सीए नहीं है, क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं भरता है। पूरा का पूरा रीजन में एक भी अकाउंटेंट नहीं है वहां पे। अभी की मुझे सिचुएशन पता नहीं है कि आफ्टर अगस्त इट हैज चेंज्ड और नॉट, लेकिन इस सिचुएशन थी। और इंडिया का जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग था उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब अराउंड 8-10% वाज गोइंग देयर, जबकि वहां से 1 रुपए का टैक्स नहीं आता था और कोई बोलने वाला भी नहीं था। It's a way to show displeasure also to the government maybe. Yes अतुल सर बताइए। इस पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगा, एक मेरे फेवरेट बहुत बड़े फेवरेट स्कॉलर हैं
आईआईटी मद्रास और स्टैनफोर्ड से पीएचडी, राजीव श्रीनिवासन, उनका अगर कभी मौका मिल जाए गूगल कीजिए, सर्च कीजिएगा, तो उन्होंने लिखा है कि कश्मीर की कॉलोनी है इंडिया, and that's the way it has happened for the last 60 years. Before ये जो आर्टिकल 370 वगैरह हटा, उसके पहले क्या था कि जितना पैसा पर कैपिटा इंडिया कश्मीर, जम्मू कश्मीर में खर्च करता था, उतना किसी स्टेट में नहीं खर्च होता था पर कैपिटा। तो इतना ज्यादा हजारों करोड़ रुपए कश्मीर पर खर्च करता था इंडिया कि लिटरली राजीव श्रीनिवासन ने वो आर्टिकल लिखा है कि बेसिकली कश्मीर जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर, वो इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में ट्रीट करता था और कर रहा था, मतलब इन द शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जमाने में। Now things are changing. Yes, Mr. Karthikeya, I think आप, I think you were trying to seek a solution, but I think अभी हम लोग सारा background पे ही बात करते रहेंगे, आपका solution तो निकल नहीं पाया exactly. So maybe we can come to you one more time. And yes, Mr. Karthikeya, आप like with this conversation, do you think you are able to make a decision, or maybe you still have some doubts? And we can continue your things tomorrow. I mean, आपको थोड़ा और अच्छे से सुनेंगे. Please, closing comments from you. First things first, I think whatever we discussed today was, on a very macro level. We were discussing बहुत बड़ी companies and mostly focused to tax invasion and stuff like that. But yeah, I would still say that I'm one step ahead to at least. So basically, मेरे को ना बस जवाब चाहिए था एक चीज का, long story short, कि मुझे पैसा खिलाना चाहिए या नहीं. I won't say that I am at a solution, but then yeah, I can still say that I am a step ahead. And as like all of us would agree कि ये बहुत बड़ा topic है. So yeah, I'll be involved, and by the time we end this topic, I'll definitely tell you something. एक चीज मैं ये बोलना चाहूँगा, I think कि कभी-कभी ये this becomes like a within thing. आपको क्या सही लगता है अंदर से is the real ethics. दुनिया को क्या लगता है, who cares? मुझे जैसा लगता है ये, I mean, this could be a way to really define your ethics, I think. Exactly. पता है, मैं just एक छोटी सी चीज मैं अपने फादर के साथ में कई बार डिस्कस करता हूँ, तो पापा अल्टीमेटली में यही चीज कहते हैं that even if you are bribing someone, तो at the end of the day, you should be able to justify that thing to yourself. Justify and have a good sleep. Like अगर आपका नींद खराब नहीं हो रहा है, वही I don't know, there might be a problem या जो भी है at the very high level, but at the very individual level कोई गड़बड़ नहीं है at least. Of course. मतलब आपकी कंडीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी. अगर आपको है ना किसी का कत्ल करके भी नींद आ जा रहा है, तो obviously there is something wrong somewhere else, not just with you, but yes, Karthikeya, what's your real struggle within? तो my real struggle is actually very very vast. I think it would be better कि अगर अपन कल डिस्कस करें. If you want, I can करते हैं. I think आपसे ही स्टार्ट करते हैं कल. आप थोड़ा सा ज्योग्राफी भी प्रिपेयर करके आइए, and we'll definitely try to give you a solution, and I think that should be our purpose of this platform. problem लेके आए हम लोग उसको at least I'll be really obliged, and I can सही तरीके से brain wash करें. तो मैं मेरे पापा को भी इनवाइट करूंगा कल, देखता how well are you able to convince him at least. I mean, देख लीजिए करना, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा उनको. तो इधर एक चीज बोलना चाहूंगा इनके लिए, जो क्वेश्चन था कि जो मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ. देखिए, बिना लॉ कानून तोड़े हुए भी, बिना टैक्स लॉज को तोड़े हुए भी आप बिजनेस चला सकते हो. उसका एक ही ईमानदार तरीका है कि अंबानी जी को डिफरेंट तरीके से इंदिरा गांधी से मिलना पड़ा था. आपके लिए आपको जान पहचान जुगाड़ लगाना पड़ेगा. आप किसी ईमानदार आईएएस को या किसी ईमानदार आदमी को जानते हो जो आपकी काम करा दे. बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, 100 में 5% होंगे, लेकिन वो 5% ईमानदार को आप खोजिएगा तो बिना पैसा दिए आपका काम हो जाएगा. ठीक है, चलिए कल डिस्कस करते हैं. आई थिंक और थोड़ा सा भूमिका बांध के थोड़ा सिनेमा टाइप, ठीक है ना. चलिए आज का टाइम ओवर हो गया है. गुड नाइट, सी यू टुमारो 10 PM. ठीक है, गुड नाइट. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.